کے نام کو عزت اور جلال دیتے خدا کے پاس جب آئے ہیں، ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے، خدا کا زندہ کلام یہاں پر بیان کرتا ہے۔ زبور 14 میں ہم دیکھ رہے تھے کہ احمد نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں۔ انہوں نے خداوند کی بات کا انکار کیا، خداوند کو رد کر دیا کہ خداوند کچھ بھی نہیں کرتا، خداوند تو کوئی چیز بھی خداوند کی نہیں، ہم اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ انسان نے جو ہے اپنا راج ڈالا۔ اگر ہم بات گاؤں کی طرف جائیں تو لوگ خدا کے کام لے کر چوروں ڈاکوں کو، ناجائز لوگوں نے بات خانوں کو بھی ایک مذاق بنا لیا۔ بڑے بڑے کروسڈ ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ اپنے نام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے خداوند کو پیچھے کر دیا، لیکن ہر بندہ نے اپنی نمائندگی کرنا شروع کر دی، ہر بندہ نے جو ہے اپنی من مانی شروع کر دی، خداوند کے کلام کو رد کر دیا، خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کیا کہ خداوند بھی کچھ ہے۔ لیکن ہم کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ خدا کے بعد انکار کرتا ہے، وہ خدا کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم کو نظر آتی، جہاں تک ہماری نظر آ جاتی ہے، ہر چیز خدا کی ہے، ہر چیز پہ خدا کا اختیار ہے۔ آج انسان نے خدا کے اختیار کو چھوڑ دیا، انسان نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں مکروہ ہیں، جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میرے حضور ان کا شور پہنچا ہے، ان کی بدی کا شور، نافرمانیوں کا شور، عیب جوئیوں کا، گناہوں کا شور خدا کے حضور پہنچتا ہے، اور پھر خدا جو ہے وہاں سے عذاب نازل کرتا ہے۔ عزیزو، جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے توبہ کرو، توبہ کرو تاکہ رجوع لاؤ اور تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ خدا کے کلام میں خاصا تمہارے گناہ کرمسی بھی ہو تو وہ بھی پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ خدا ہمارے گناہ کو معاف کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو گناہ سے نجات دے گا۔ گناہ سے نجات یسوع دے سکتا ہے۔ آج ہم یسوع کے پاس آتے ہیں، عزیزوں بڑا اچھا موقع ہے، ہم خداوند کو لے کر آئیں، ہم خداوند کے کلام کو آگے لے کر چلیں، ہم آج پیغام کو، اس محبت کے پیغام کو لوگوں تک دیں، کیونکہ یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ رہائی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے، چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں، آج وہ ہم گھروں کے اندر بند ہیں، آج بڑا اچھا موقع ہے، ہم دعا میں بیٹھ کے روزہ رکھیں، عبادت کریں، جھک جائیں، اپنے آپ کو خالی کر دیں، کیونکہ جب اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنی خودی، گھمنڈ، غرور، حسد کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، تو عزیزو آسمان سے آپ کا خدا سن کر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ دیکھیں وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر خدا کے حضور تازگی کے دن آتے ہیں، یہ کرونا وائرس چلا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ خط یسوع کے نام سے ختم ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے، کلام میں لکھا راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور لکھا ہے خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کوئی دانش مند ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے، آسمان سے نگاہ کر رہا ہے کہ کوئی دانش مند ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی خدا کی پہچان کرنے والا ہے۔ اس حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا ایک ایسا شہر تھا جس کی بدی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور خدا کہتا ہے اپنے بندہ یونس کو کہ جا اگر وہاں پر کیا کر کلام سنا، منادی کر کہ 40 دن بعد نینوا فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نینوا کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ خدا اپنے بندہ یونا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تو جا نینوا میں جا کر پیغام دے کہ 40 دن بعد نینوا ختم ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب لوگوں نے یہ پیغام سنا کہ نینوا ختم ہو جائے گا، خدا اس کو مٹا دے گا، انہوں نے خدا کے آواز کو سنا کہ خدا غصے میں ہے، خدا ناراض ہو چکا ہے، خدا ہم سے جو ہے رک چکا ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں ہم کو بڑا خوبصورت یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے خدا لکھا ہے کہ تب نینوا کے لوگوں نے، اگر ہم یونا 3 باب دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا اور منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، ادنا اعلیٰ سب نے ٹاٹ اڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ تک بھی پہنچی، بادشاہ تک بھی پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہ لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راہ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اس کے ارکان دولت کے فرمان نے نینوا میں اعلان کیا کہ اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ راما کچھ چکھے نہ کھائے، لیکن انسان حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گرہ زاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے
पास आए। नैनवा में मुनादी की गई और नैनवा के लोगों ने क्या किया, बादशाह से लेकर बच्चों तक, अमीर से गरीब तक, जानवरों तक उन्होंने खुदा के पास आ गए और लेकर रोजा रखा और खुदा के सामने आए और बात ऐलान किया कि क्या करो, गिराजारी करो, खुदा के सामने झुक जाओ ताकि खुदा हमारी बुरी रफ्सों को और हमारे बुरे कामों को खुदा जो है वो दूर करे। शायद खुदा हम पर रहम करे और अपना राधा बदले और अपने कहर शरीर से पास आ जाए। अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि वो लोग खुदा के सामने बैठ गए, रात को खाट पे बैठ गए, खुदा के सामने झुक गए, अपनी खुदी का इनकार किया, अपने आप को खम कर दिया, अपनी मैं को खत्म कर दिया, अपने खुदी से इनकार कर दिया, अपने घमंड से, अपने घिनौने कामों से उन्होंने क्या की, तौबा की। लिखा है कि बुरी रफ्सों और अपने हाथों के जुल्म से बाज आए और कहा कि शायद खुदा हम पर रहम करे, हमको लाख ना करे। और ये जब खुदा लिखा है, खुदा ने क्या किया, खुदा ने उनको हलाक कर दिया? नहीं, खुदा हलाक नहीं करता। कलाम में लिखा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता तौबा करे, खुदा के पास आए। और यहाँ पर लिखा है कि तब क्या हुआ, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी। कैसी हालत देखी? जब उन्होंने अपने आप को कम कर दिया। जो दरख्त झुकता है इसको फल नहीं लगता, जो दरख्त झुकता नहीं है, हम देखते हैं बुझाओ की तरह झुके, और जब झुके, जब अपने आप को खाली कर दिया, जानवरों, इंसानों, हर चीज को वो खुदा उनके पास ले आए, हर चीज से खुदा उनके सामने अहद किया, इकरार किया, गुनाह की माफी मांगी। तो लिखा है फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने उनकी हालत देखी और अपनी बुरी रवैया से वो बात आए और तो गजब से जो उन पर नाज़िल करने को था बात आया, उसे नाज़िल ना किया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी अपनी नफ्सों से बाज आ गए हैं, अपने गुनाह से तौबा कर लिए, अपने गुनाहों को छोड़ दिया। आज लोग हमें भी अपने गुनाह को याद कर रहे हैं, हमने कितने गुनाह किए, आज दुनिया में कितने गुनाह रूज पे हैं, तो वो काम कर रहे हैं जो खुदा की नजर में घिनौने हैं। आज लोगों ने खुदा को रद्द कर दिया। आमद कहता है कोई खुदा है नहीं, तो खुदा का इनकार करते हैं, अपनी मर्जी से सारा काम चला रहे हैं। जो कुछ इंसान के दिल में है वो काम कर रहा है, जो इंसान की ख्वाहिश है, ख्वाहिश हमला अपने गुनाह को जलते हैं, गुनाह क्या कहता है, मौत पैदा करता है। गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम गुनाह करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, जब लोगों से कहा जाता है कि ये काम ना करें, तो लोग क्या कहते हैं, चलो अभी अगले गुनाह करने घोर करना जिंदगी छोड़ दिया। इसीलिए हम देखते हैं गुनाह बढ़ता जाता है, गुनाह बढ़ता जाता है और गुनाह की मजदूरी क्या बन जाती है, मौत। न्यानवा के लोग अक्लमंदी की है, आज हमारी दुनिया को अक्लमंदी कर रहा है, न्यानवा की तरफ बैठ जा रहा है। घरों में बैठकर सिर्फ हमने ड्रामे, फिल्म्स या दूसरे कामों में मसरूफ है, दुआ में बैठना है, रोजा रखें, दुआ करें। हम देखते खाने की भी कमी हो रही है, तो खाने के लिए मसाले, अब रोजा रखें, रोजा रखकर दुआ करें। हमारे तो ऐसे रोजे हैं, हम रोजों में बैठ जाए, दुआ करें, खुदा की इबादत करें, खुदा के सामने झुक जाए ताकि खुदा आसमान से सुनकर हमारे गुनाह माफ कर दे। अजीजों, आज अपने गुनाह का इकरार करना, तौबा करनी है, खुदा के सामने झुकते रहें। लिखा है खुदा आसमान पर से बनी आदम पर निगाह करता है, देखता है कोई दानिशमंद है, कोई खुदा का तालब है या नहीं है। खुदा जो लिखंडे है, खुदा के तालब कौन कौन से हैं, कौन कौन से आज खुदा के पास आना चाहते हैं, कौन कौन से आज खुदा उनके सामने आकर उसका इकरार करते हैं। खुदा अपने बंदों के बारे में जानता है। इब्राहिम कहता है ना, अगर खुदा तो दासियों से निकल मानदार निकल खुदा के तो फिर भी छोड़ता है, खुदा कहता फिर भी छोड़ दूंगा। अगर वहां 10 लोग भी खुदा के साथ चलने वाले निकल आए तो मैं छोड़ दूंगा। आज खुदा निगाह कर रहा, देख रहा है दानिशमंद खुदा की तरफ आया या नहीं आया, या वैसे हालात रहे, हम वैसे मजाक बना लिया दरियाफ्त को देखकर। ये कोरोना वायरस आज दुनिया के बहुत उबाले जान आलमी वबा बन चुकी है, लोग डर गए हैं, और लेकिन खुदावंद कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के कलाम ज़बूर 125 में लिखा है, जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं, कोई शौन की मान्यता भर के बेशक कायम है। जब खुदा पर भरोसा करते हैं, जब खुदा पर तवक्कुल करते हैं, जब खुदा की बारगाह में आते हैं, तो हम देखते हैं खुदा आसमान से निगाह कर रहा है। अय्यूब के बारे में कहता है, अय्यूब को खुदा देखता है कि मेरा रास्तबाज बंदा है। खुदा कहता है इब्लीस ने कि मेरा बंदा जमीन पर रास्तबाज अय्यूब है, जिसके गिर्द मैंने बाढ़ लगाई है। खुदा आसमान से निगाह करता है, जो उसके आस-पास बंदे होते हैं उनके जिगर खुदा बाढ़ लगा देता है, खुदा उनको अपनी पनाह में लेता है। खुदा हमारी दुआओं से कौमों को, मुल्कों को बहाल करता है। और आज हमें खुदा के पास आना है, खुदा के हुजूरी में आना है, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को खुदा कहते रहो। हमें उसकी तरफ अपनी निगाहें कैद करनी है। वो आसमान से देख रहा है, वो आज आसमान से निगाह कर रहा है, बनी आदम पर निगाह कर रहा है, देखता है कि कोई दानिशमंद है, कोई खुदा का तालब है या नहीं है। जब खुदा के तालब हो जाते हैं तो फिर खुदा का तालब किसी नेमत का मुताज नहीं होगा।
हमें खुदा के तालब बनना है, आज खुदा के पास आना है। आज हम देखते हैं दुनिया में सब लोग किसी मजहब से है, किसी ग्रोह से, किसी फिरका से है, वो खुदा के पास आ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। और हमें इन दिनों में हर एक मजहब के लिए, हर एक कौम के लिए पैगाम देना है, वो अपने गुनाह का इकरार करें, तौबा करें, ताकि हलाक न बल्कि जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि उससे डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजान रहता है। खुदा से जो डरते हैं, हमें आज दुनिया से नहीं डरना, वायरस से नहीं डरना, बल्कि खुदा से डरना। देखा, खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजान होता है। हमें आज अपने खिदमत खानों से निकलकर इस पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है, इस मोहब्बत के पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, खुदा दहशत नहीं है, खुदा मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। कलाम मुकद्दस में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उससे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज अजीजों मोहब्बत करते हैं, खुदा मोहब्बत करता है, और जब हम खुदा के पास आते हैं तो फिर खुदा हमें बहाल करता है। आज ये पैगाम मोहब्बत का लोगों तक लेकर जा रहा है। लोग सहम चुके हैं, लोग अपने अंदरों के घरों के अंदर कैद हो चुके हैं, गम की हालत में, परेशानी की हालत में है। आज उनको मोहब्बत का पैगाम दे। खुदा मोहब्बत करता है, खुदा नफरत नहीं करता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा तौबा चाहता है। खुदा चाहता है कि हम तौबा करें, रजू लाएं, ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाए। आज सलीब के पैगाम लोगों तक लेकर जाना है। कलाम में लिखा, सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वाले के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत को लोगों तक लेकर जाए। इस पैगाम को आज देखें, जबकि आज दुनिया की मेडिसिन फेल हो चुकी है, दुनिया कत्ल रात हो चुकी है, दुनिया आज हम की हद में बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी कुव्वतें जो अपने आप को बड़े माहिर समझते थे, जो अपने आप को बड़ा अच्छा समझे, साइंस के बारे में जानते थे, लेकिन आज साइंस भी, आज मेडिसिन भी, कत्ल भी खुदा के रसूल कुछ भी नहीं है। लेकिन आज खुदा के पास आ रहे हैं। मेरा और आपका खुदा आज आवाज देता है, चाहे मेरे तो उठाने वालों और बहुत से दबे लोग मेरे पास आना, तुमको आराम दूंगा, मैं हर बात से बचाऊंगा। पूरे कानून में खुदा कहता है, हर ताला की पर्दा रहता है, ताजे मुल्क के सैर शुरू करता है। जब हम खुदा के पास आ जाते हैं तो पहले क्या कोई बात क़यामत के दिन ना पहुंचेगी। मैंने तरफ 10,000 के चाहिए, लेकिन तेरे नजदीक ना आएगी। तो आज हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। आज हम जहाँ जा भी हैं, आज मेरा पैगाम जहाँ तक भी पहुंच रहा है, जिन लोगों तक था वो इसी है, दूसरे लोग कोई भी है, आए अपने खुदा को पुकारे, अपने खुदा के सामने झुक जाए, खुदा के सामने आकर अपने गुनाह का इकरार करें, तौबा करें, रजू लाएं, ताकि हमारे गुनाह चुकाए जाए, ताज़गी के दिन आए। क्योंकि आज खुदा आसमान से निगाह करता है, आज खुदा आसमान से निगाह करता है और देखता है कि कोई आसमान है नहीं है। आज खुदा आसमान से निगाह कर रहा है, आज खुदा देख रहा है कि मैं अपने दानिशमंद है। और आज भी हम इस बात को लेकर दानिशमंद नहीं बनते, खुदा के पास नहीं आते, तो फिर हमें आज खुदा को सुनने की जरूरत है। खुदा की मानने की जरूरत है, खुदा को सुनना कर अपने खुदा का इकरार करें, अपनी बदी को, अपने नाफरमानियों को, अपनी जिंदगी के लम्हात को आज खुदा के पास लेकर आए, तो अपने खुदा से दूर रहकर गुजारे। हमें आज खुदा के सामने झुक कर खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं, और जब उसके लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो फिर खुदा अपना जवाब करता है। अजीजों, खुदा आसमान से निगाह कर रहा है, खुदा देख रहा है, जो मेरा तालब है, आए आप उसके तालब समझें। आज अपनी खुदी को खुदी का निकाल करें, आज अपनी अकल को नहीं बल्कि खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें, ताकि उसके खिलाफ गुनाह न करें। आज खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में, आज खुदा की आवाज को अपनी जिंदगी में ले लें, आज खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में ले लें। अब वक्त है काफिर के सोने वाले जाग और बूंदों में से शी और जागो और दुआ करो, ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। जब हम दुआ करते हैं, जानते हैं, खुदा के सामने झुक जाते हैं, तो खुदा आसमान खोलकर अपना जलाल जाहिर करता है। अजीजों, आज अपने खुदा के सामने आ जाएं, उसके सामने झुके, हम खुदा की तारीफ करेंगे। रहेगा नाम सदा तीक बसीदा, रहेगा नाम सदा तीक बसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन।
te compaiosia danvadigavan te compaiosia danvadigavan jo Israeliya dara खुदा है जो इसराइलिया दारा खुदा है अजाइब कम करदातन सदा है अजाइब कम करदातन सदा है खुदा दा पाक ना है शान वाला खुदा दा पाक नाम है शान वाला सदा कर मुबारक को रहेगा सदा कर मुबारक को रहेगा बुजुर्गी होती है दुनिया से सारी बुजुर्गी होती है दुनिया से सारी कहो मीना मीना फिर दूजी बारी कहो मीना मी फिर दूजी बारी। हालेलुया। हमारा ईमान है कि आपने हमारे साथ मिलकर दुआ में शामिल हुए। बहुत से लोग आज हमारे साथ शामिल हैं जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जो हमारे साथ इबादत में शामिल हैं। हम आज सब मिलकर दुआ करें। आप जहाँ जहाँ पर बैठे अपने घरों में आप जो भी हमारे साथ मिलकर दुआ करें। अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं, अपने हाथों को सिर्फ जोड़ते न रह जाएं, बल्कि आज अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं, अपने हाथ खुदा की तरफ उठाएं, खुदा के सामने आ जाएं। खुदा आज पुकार रहा है तो मेरे पास आ, मेरे उठाने वाले बहुत सुंदर मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जब हम खुदा के पास आते हैं, जब खुदा के सुन पे झुक जाते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं, खुदा हमें सुनता है। क्योंकि खुदा के कलाम में उसके मुकद्दस उसके पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वो जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है। इसने बदारत पर देने लगाया और मगर से कसम नहीं खाई, खुदा उनकी तरफ से बरकत पाएगा। आइए आज अपने हाथ खुदा की तरफ उठाएं, मेरे साथ मिलकर दुआ करें अपने आप, अपने लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने सूबा के लिए हम दुआ करेंगे। हम सब दुआ करेंगे, दुनिया की दुआ करें, अपने अपने हुकूमतों की दुआ करें। हम दुआ करें अपनी बात अफवाज के लिए, दुआ कर रही है। हम दुआ करें अपने डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। आज जितने भी खुदा के लोग आगे चलकर काम कर रहे हैं मेडिकल शोबा से, पुलिस के लिए हम दुआ करेंगे, अपने इंसानियत की दुआ करेंगे। आज जो लोग की खिदमत कर रहे हैं हम उन लोगों की दुआ करें, आज लोग की खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, राशन का इंतजाम कर रहे हैं। खुदा को आसमान खोल कर बरकत दे, क्योंकि खुदा अपने अच्छे खजाने खोलता है। आज लोग खुदा के पास आते हैं, दुआ करें। हम अपने मुल्क के लिए तेरा मुल्क बहाल हो जाएगा। जब हम दुआ करेंगे तो हमारा मुल्क बहाल होगा, हमारी कौम बहाल हो जाएगी। हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करना है, अपने हुक्मरानों के लिए दुआ करना है। खुदा को दिलाई बख्शे, खुदा को बेहतर तौर पर अच्छी सोच दे ताकि अपने लोगों के लिए बेहतर रहनुमाई करे। आज हमें खुदा के पास आना है। असीसो खुदा का कलाम बयान करता है कि हुकूमतों के ताबे रहो। जब हुकूमतों के ताबे रहते हैं, जब खुदा के पास आते हैं तो खुदा अपना जलाल करता है, खुदा अपनी मोहब्बत को नाज़िल करता है, खुदा अपने ज़ाहिर करता है। हालेलुया। दुआ करेंगे। अज़ीम कादिर आसमान और ज़मीन के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तू जिंदा है, पाक है, मेहरबान है। ऐ खुदावंद, हमारा ईमान है कि तू आसमान पर तख्त नशीन है, तेरी आंखें जमीन पर सैर करती हैं। तो अपने लोगों को देखता है, तो अपने लोगों को बचाता है, तो तेरा कलाम बयान करता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तेरे लोग आज हाथ उठाकर आसमान की तरफ से निगाह कर रहे हैं। तेरा बंदा ज़बूर नबीस कहता है, अखियां चुप ना मैं पहाड़ा, मदद लई मैं किस को पुकारा। हाय खुदा, आज
हमारी मदद आसमान से जिंदा खुदा की तरफ से आएगा, जो गांवों पर हिदायत रखता है, जो लैंडा के लोगों को बचाता है, जो मलका के लोगों को बचाता है, आज हमें भी वो बचाने की कुव्वत रखता है। आज हम जिंदा खुदा के पास आए हैं, आज हम उस खुदा के पास आए हैं जिसके इख्तियार पे हर चीज है, तो कहता है दुनिया का कुल इख्तियार मेरे पास है। आज हम उस खुदा के सामने झुक चुके हैं, आज हम उसके पास आए हैं जिसके पास निजात है। आए हम खुदा तेरा शुक्र करते हैं, आज हम सबकी दुआ पे कान लगा खुदा, हमें इस बहुत बड़ी वबा से बचा ले खुदा। ये वबा कोरोना वायरस तो आज दुनिया के लिए वबा चाल बन चुकी है, दुनिया में डर को पैदा कर दिया। आज बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने बेबस हो चुकी है, बड़े बड़े अक्लमंद लोग इसके सामने बेबस हो चुके हैं। लेकिन खुदा जब तू हमारे साथ आएगा, तेरा हाथ बड़े खुदा, हमारे सूबों पर तेरा हाथ बड़े खुदा, अपने पास में खुदा पहुंच के लिए खुदा अपने इस वक्त लोगों की हेल्प कर रही है, उनके लिए बरकत मुआवजा की दुआ करता हूँ। अपने डॉक्टर्स के लिए खुदा, नर्सेस के लिए खुदा, और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, लाबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए, दूसरे शोबों में काम करने के लिए, महकमा पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए खुदा, के पाकिस्तान के एक फर्द के लिए, दुनिया के एक फर्द के लिए आज का मुआवजा मांगता हूँ। आज मैं दुआ करता हूँ हर एक इंसान के वो किसी मजहब, किसी कौम, किसी फिरका, किसी ग्रोह से है, ऐसा वो आज तेरे पास आए हैं खुदा बाप, उनके गुनाह माफ करके तू बहाल कर दे और इस आफत को दुनिया से गायब कर दे। ऐसा चाहते हैं आफत दुनिया से चली जाए, लोग बाहर निकले, आजाद होकर तेरे नाम को जला दे, लोग तेरी तरफ रुख कर ले, अपने आप को तेरे सामने पेश करे। ये चर्च, ये खुदा की इबादत गाहें जो आज बंद हैं, खुदा चाहते हैं कि इनमें ज्यादा तादाद में लोग आरज़ कर दे ताकि खुदा तेरा नाम चला पाए। हम सब चाहते हैं कि सारा माहौल बेहतर हो जाए, माहौल बेहतर हो जाए, यीशु के नाम से वायरस चला जाए। ऐ वायरस यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़ दिया, खुदा तेरा नाम चला पाए। तू जलाल का बादशाह हमारा जिंदा खुदा है। ऐ कादिर मुझे खुदा आज अपने जलाल को ज़ाहिर कर, हमारे रोटी और पानी को बरकत दे। तो तेरे कलाम लेकर जब तुम मेरी इबादत करोगे, मैं तुम्हारे रोटी और पानी को बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान से बीमारी को दूर कर दूंगा। ऐ खुदा इस वबा को जिसका राज दुनिया में नहीं है, तेरे पास राज है। तुम्हारा जिंदा खुदा है, तुम्हारा कादिर मुझे खुदा है। आज बड़े ईमान के साथ हम आए हैं, बड़े ईमान के साथ हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू फरमाता है कि जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा, आसमान पर खुदा उसकी जलाल तय करेगा। खुदा आज बड़ी बरकत दे, अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर, अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर कर खुदा, ताकि तेरे लोग तेरे सामने झुक जाएं, तेरे सामने आ जाएं, तेरे सामने अपने गुनाह का इकरार करें खुदा। हालेलुया खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरा नाम की तारीफ हो खुदा। अपने आपको तेरे सुपुर्द करता हूं, अपनी कलीसिया को तेरे सुपुर्द करता हूं। एक एक घर पे एक फर्द को, अपने कौम को, अपने लोगों को, अपने मुल्क में बसने वाले हर एक इंसान को मैं खुदा मैं तेरे हाथ में दे देता हूँ। दुनिया के खुदा दुआ करता हूँ, दुनिया में खुदा इस तरह का खौफ डरता रहे और वबा खत्म हो जाए। खुदा आज तो मैंने दुआ को सुना है, तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू फरमाता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज हम बड़े ईमान के साथ मांग रहे हैं, हम तेरे लोग हैं, हमारा तवक्कुल तुझ पर है, तुम्हारा भरोसा तुझ पर है, और जो तुझ पर तवक्कुल करते हैं वो कोई सोम की मांग है। हालेलुया खुदा, बड़ी बरकत है खुदा। आज अपने सामान को खोल और अपना जलाल कर खुदा, ताकि तेरे लोग तेरा शुक्र कर सके खुदा। हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे बदियां, नाफरमानी, गिनौने काम आज यीशु के नाम से धुल जाए। आए खुदा आज हम अपने बदनों पर तेरे लफ्ज़ लगा लेते हैं, ताकि हम तुमसे यीशु के नाम से मांग करते हैं। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कर्ज को माफ किया, हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जला हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा के सूची का फल सबाब पूरे पाक के फर्ज शाकर पूरे ईमानदारों के साथ, हमारे कलीसियाओं के साथ, पूरे पाकिस्तान दुनिया के ईमानदारों और दुनिया पर हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपकी मोहब्बत करे, आपको हमें याद रखें।